is here. She is the Secretary General of AACCI. और यहाँ पर MJ पुरी साहब हैं जो यहाँ खड़े हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी पुरी साहब if you want to join. Okay. Puri Saab is also here. You can catch him separately. He is also donning a beautiful dress. So आपको पहचान में प्रॉब्लम नहीं होगी. He is the Director General of AACCI. आज यहाँ पर साहब जब यहाँ बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब जो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, that is he is the founder president of the entire globe to which the Asian African Chamber and Industry is catering to. तो उनसे ही मैं पहले आग्रह करूँगी कि वो हमें इस चेंबर के बारे में बताएं, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया एक ऐसा पायदान है जिसको इग्नोर करके आप कहाँ जा सकते हो. तो इन्होंने बहुत कोशिशों से ईस्टर्न इंडिया में अपना एक फुटप्रिंट यहाँ पर रखा है. और जब ये मुझे आपने थोड़ा बहुत आंसर दिया मेरा क्वेश्चन का, बट देन अगेन आई वुड आस्क यू व्हाट बेनिफिट विल दे गेट, हाउ विल दे विल गेट बेनिफिटेड, एंड लास्टली व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस. आई मीन ये करके क्या मिलेगा. आई मीन MSME एंड चेंबर both are different segment, right? So how you can collaborate both and look forward to something good. Very nice, thank you so much. आज हम यहाँ कलकत्ता में मौजूद हैं because we are doing installation ceremony of East India chapter for Asian African Chamber of Commerce and Industry. और East India chapter के हमारे होने वाले chapter president जो हैं, she is none other than Dr. ममता बिनानी. ममता बिनानी जी का नाम आपने सुना होगा. The first insolvency specialist for the society, and in fact I guess that इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है SMEs और MSMEs को फंडिंग दिलाने में और आगे लेके आने में, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि SMEs और MSMEs जो हैं वो देश विदेश में तरक्की करें. और मुझे ईस्ट इंडिया चैप्टर से खूब एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि इसका जस्टिस इससे बढ़िया नहीं हो सकता था. एंड आई कुड नॉट हैव डिमांडेड एनीथिंग बेटर देन हैविंग डॉक्टर ममता बिनानी जी as my upcoming chapter president for East India for the Asian African Chamber of Commerce and Industry. আমি অনেকই উপকৃত যে আজকে এশিয়ান আফ্রিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া চ্যাপ্টারের আমি প্রেসিডেন্ট হতে চলেছি. আজকে ইনস্টলেশন সেরেমনি, আর আমি নিজেকে উপকৃত তো মনে করছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন আরও আমার শোল্ডার্সের উপরে একটা রেসপন্সিবিলিটি এলো. আমি MSME ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট আছি, আপনারা সবাই জানেন. আর আমার এইটা মনে হলো যখন ওরা দিচ্ছিল আর আমি নিলাম, আমি এইটাই ভাবলাম দ্যাট দিস উইল বি কোয়াইট কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি আমি যেটা করি. এখনই MSME ডেভেলপমেন্ট ফোরাম থেকে আমি MSMEদের জন্যই কাজ করি, প্রচুর কাজ করি. এখানে আমি সেটাই আর একটু এগিয়ে নিতে পারবো. আপনারা সবাই জানেন যে আমরা অনেক দেশ থেকে আয়াত বা নির্য়াত করি, ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট. আজকে আপনারা এটাও শুনলেন যে যদি কোনো নতুন কান্ট্রিতে গিয়ে ব্যবসা করতে হয় অনেক কিছু জানতে হয়. যে আপনি একটা নতুন দেশে গেলেন, শহরেই আমাদের প্রবলেম হয়, একটা নতুন দেশে গেলে তো অবভিয়াসলি প্রবলেম হয়. এখানে আমরা এই চেম্বার থেকে ওই নতুন দেশ যদি এশিয়ার আফ্রিকার মধ্যে পড়ছে, মানে 102 কান্ট্রি, 102 কান্ট্রিজের মধ্যে যদি পড়ে, আমরা আপনাকে সব ইনফরমেশন মুহৈয়া করে দিতে পারবো যে ওই দেশে কীভাবে ব্যবসাটা করা যাবে, কী জিনিসটা সস্তা, কোন ট্যাক্স বেনিফিট আছে, ওখানে কোন কাউন্ট্রিতে গিয়ে কাজ করলে আপনার বেটার হবে, এই সব ইনফরমেশন এই চেম্বারে পাওয়া যাবে. আমি ওনাদের এই জানাতে পারবো যে ধরে নিন উনি একটা শাড়িতে কাঁথা স্টিচ করছে, কথার কথা বলি, কাঁথা স্টিচটা শুধু করলেই তো জিনিসটা বিক্রি হবে না, ওইটাকে অ্যাক্রিডিশন করতে হবে, ঠিক আছে? ওইটাকে আমাকে স্যাম্পলিং করতে হবে, সেটাই বলছি. না, মেম্বার হতে হবে না, সেই সময় আমরা ওই গাইডেন্সটা ওনাকে দেবো, কারণ আমরা তখন ভারতবর্ষকে অন্য জায়গায় দেখাতে পারবো, দেখুন আমাদের ভারতবর্ষতে কত ভালো কাঁথা স্টিচটা হয়. তো সেই অ্যাক্রিডিশন করিয়ে দেওয়া বা সেই প্যাকেজিং করে देवा সেটা আমাদের তখন করতে হবে. मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसके माध्यम से हम हमारे यहाँ का जो वर्ग है, जो भले ही जैसे आप बता रहे थे कि गाँव में या छोटे शहरों में भी जो व्यापारी हैं या जो स्पेसिफिक स्किल सेट पे काम करते हैं, या फिर दूसरे शहरों के यहाँ के व्यापारी, कलकत्ता के अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके पास एक बहुत
बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीमित न रहें बल्कि असीम हो जाए, यानी कि उनका जो काम है, उनका जो कार्य है, उनका जो व्यापार है वो केवल कलकत्ता तक या केवल इस देश तक सीमित न होकर देश विदेश में पहुँचे, कम से कम 102 देशों तक जहाँ पर ये जो एशियन अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स है इनका विस्तार है, इनका प्रेजेंस है, और इसके माध्यम से ये उन सब देशों तक पहुंच सकते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ के इम्पोर्टर्स से जुड़ सकते हैं, और जो 2 या 3 सबसे बड़े आयाम या सबसे बड़े पिलर्स हैं व्यवसाय को आगे बढ़ाने के, बिजनेस को आगे बढ़ाने के। चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जैसा कि हम लोग सब समझते हैं कि आजकल कोलैबोरेशन ही सीढ़ी है जीत की। तो जब तक हम लोग एज एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे चेंबर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलती है। तो इस तरह की जब हम लोग चेंबर्स से हम लोग साथ में जुड़ते हैं, आज जैसे हम लोग MSME डेवलपमेंट फोरम में हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ MSME डेवलपमेंट फोरम में, तो हम लोग जब अलग अलग चेंबर्स के साथ MOU साइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे विश्व का द्वार अपने लिए खोल रहे हैं। और एशियन अफ्रीकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसका एशिया में बहुत ज़्यादा पहुंच है। तो जितने भी ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करना चाहते हैं अफ्रीका के साथ, उसके लिए एक तरह का गेटवे है। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।